life and we can better ourselves. Yes, so moving forward, what is this series all about? Can I have the next, yes. Next screen, please, Akshay. Yes. So what is this series all about? Being a life catalyst, what does it actually mean? Catalyst, we all know that once you get associated, catalyst is actually helping you to grow. But at Life Catalyst, it is to be effective with sustainable growth. So everybody achieves growth in their life. Everybody wants to grow and achieve success. But to have the sustainability is what we are focusing on. We have to disappear all those barriers that we that come across our ways and create a direction. So that's where Life Catalyst comes in, and then we do this with a process where you have a velocity, acceleration, and different values put together. This is how we are going to be effective in our lives. And how do we do that? So there is again a how to that, right? So this series is going to consistently provide you values that would add value to each one's life. And like I said, we're going to meet many successful people. So we're going to listen from their life journeys here. So this is all what this series is going to be about. Now, apart from that, at Life Catalyst, what do we do? So we have a methodology where there are different views that we have already have in our mind. Mind blocks or mindsets that we can say, that we have created in our mind binders also that we have in our mind. So this is where we use different methodology where we can break those, and we create an access to unprecedented results in life of an individual, not just an individual but also in a company, where you can grow in your career, business, relationships, and overall future and health. And this we do it how? By addressing all those areas and aspects of life like we have completely ignored. For example, self-confidence, talents, hobbies. So we never give these things important, but they actually play a major role in our lives. So how do they say that, and how is it important? This is what Life Catalyst does. So moving forward, along with me, my team is there. Mr. Akshay Valimbe, who's giving his best support for his technical end, and he will come into your picture later. Right now, let me introduce you to Reshma Kalantri, and she will take you through the journey ahead. So please welcome Reshma on this platform. Thank you, Neha. Over Good to you, evening, Reshma. everyone. You're on mute. Can you hear me? Neha, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Good evening, everyone. Welcome to another exciting session of the Value Addition series. Neha has spoken about being a catalyst and how that works and how that can help us move forward in life. Being effective, where do we need to be effective in life? That's important. So I believe it's every aspect of our life where we have to be effective. We need to be productive in our relationships. We need to be productive in our health. We need to be productive in our careers. Most of us, when you think of productivity, focus only on the careers. Here, we help you to focus on every aspect of life. And we do that by dissolving the barriers that each of us have in our emotions, with time management, with our physical space, with our physical health, in finances, and in relationships. And we do this through a series of programs that we conduct. We're starting a new program called Business Excellence. We're starting this in Nasik on the 18th of September. We've already started in Aurangabad on the 29th of August. We have other programs that we conduct called Business Yogi, which is also running successfully, and another program called Game Changer, in addition to this Value Addition series that we do. And you have a choice to change your life, to help
the catalyst bring about a metamorphosis in your life, in your career. And you can do that by joining us right now. Thank you. Let's meet our guest today. She is an amazing, amazing personality. Alifia Sura is a global sales growth authority driven by a mission to help CEOs, entrepreneurs, and sales managers win profitable clients consistently, even in the toughest of times, and help business owners enjoy stress-free time they deserve. She is the founder and chief strategy officer of Rooftop Sales and strategic coach with 10x CEOs, which is a global consultancy platform for CEOs and entrepreneurs. With 18 years of accomplished global sales experience, churning over $100 million in sales revenues, 10x Sales Mastery helps C-level executives, entrepreneurs, sales managers of Fortune 100 and 500 companies to not only automate profitable business revenue, but also equip them with the tools to lead, teach, and inspire teams for self-accountability and peak performance. She is a recognized industry professional who has earned a trusted network, delivered on promises, and shaped a reputation as a strategic business leader that guarantees success in boosting revenues, P&L management, and global business development. The list of her achievements is long and is very, very illustrious. And I think it's best that we learn from her and listen to what she has to share. So Alifia, welcome to this platform. We're really grateful that you're here today and very excited to hear what you have to say. Over to you, Alifia. Thank you, Reshma and Nehal and everyone. It's such a pleasure to be here. So let me quickly start. I wanted to play a video. If that's okay for all. Can you all see the full screen? Yes, we can. Are you guilty of laying off your people, especially in these testing times? The number one reason is that your business is not making enough revenue. Sales is the lifeblood for any business. And the truth is, most entrepreneurs are not good at selling. The truth is, sales can be tough, frustrating, maybe embarrassing. And why? Because 88% of CEOs and business owners have never professionally trained themselves in selling techniques. They rely on sales teams to drive their numbers. We understand your frustration. Today, after 20 years of hands-on selling experience and achieving more than $100 million in sales revenues, the 10x Sales Mastery for CEO and entrepreneurs has learned that sales is a game of numbers. Selling can be fun, and especially once you win, it's liberating, it's fulfilling, and very rewarding. Not just for you, also for your family and your employees. Good salespeople are the first ones to get hired. Good salespeople are the last ones to be fired. Our mission is to impact your life with a winning sales acumen. The proven 10x Sales Mastery for CEO and entrepreneurs will equip you with the perfect elevator pitch and positioning. It is backed with an intensive weekly accountability tracker that guarantees the performance to make your business revenues not only consistent, but also predictable. So here is your challenge. If you want to get really rich, then train yourself in sales like your life depends on it. Because the truth is, your business
surely does. So with that note, let's have a show of hands. Tell me how many of you like selling? And we can all use the chat as well. Tell me how many of you like selling? All right, I have 3. I do. All right, awesome. Brilliant. Super. Thank you for telling. And now tell me how many of you don't like selling? Let's have a show of hands. Who don't like selling? So you can say no in the chat so that I know which one is don't like selling, huh? So we have like 3, 4, 5. Like selling, don't like selling. Now, just for the record, I think we are about what, 50 odd in the group here. And I've had about 5, 10 saying yes, 5, 10 saying no. How many of you are not going to raise your hand no matter what I say or do? I can have a show of hands on that. So let's try again. How many of you want to actually double your business revenues, irrespective of whether you like selling or not? So let's have a show of hands on this answer and let's see how many are really participating. Excellent. I'm seeing a lot more hands and thank you for your participation. Participation is one way of learning and I encourage you all for the next 25 odd minutes that I'm going to talk. Do participate because it's just going to be a lot more value that you take away from this one. So now that's the first step we've already taken. You are in the right place and I acknowledge your time, your hunger, and your want to succeed. And you know, the step that you've been taken to be here is the first step. So let's all, really give a very big high five into the screen, right into the screen and encourage not only yourself for being here, but every other person who's in this room. And well done. I want to take this opportunity to even again thank Atul, Neha, and the rest of the Life Catalyst team to really create this valuable platform, which is so much extra needed at these times, So well done, and I wish you abundant blessings, and may you accomplish all your missions that you want to do from this platform. So well done, you guys. So very quickly, everyone okay with my English? Understand? I was told a little bit of Hindi is needed or something. Is everyone okay? Understand? Am I fast? Do I need to slow down? Anything? A little bit of Hindi would be welcome. Okay. Yeah, thank you. Yeah, a little bit of Hindi is welcome. Okay. The last time I spoke Hindi was 20 years back a lot, but in school, I definitely used the marks. So let's all get to know you a little bit. Just tell me how many of you are business owners? And by business owners, I mean you have a team of 3 or more people. So you can say BO in the chat. You can say BO in the chat. How many of you are business owners with 3 or more people in your company, in your team? Yeah, Vishal, Bish, yeah, good to see you. Okay, 3, 4, 8, 10. All right. A lot of BOs and a few hands are raised and I appreciate that as well. And how many of you are not business owners? So that means you can be employees or you could be solopreneurs. So just put E or S in the chat. If you're a solopreneur, put S in the chat. If you're a business owner, if you're an employee, put E. If you're a business owner, put BO. So let me just get to know. So there are a few employees, understand? And there are a few solopreneurs. That means you're alone in your company, probably a team of yourself and maybe 1 or more. Excellent. So there are a few, most of you are business owners, a few are solopreneurs, and a few are employees. Thank you for sharing. And I want to tell you that this is a proven system that I want to share with you. And it's going to be 3 steps about how any business can accelerate sales. Whether it's tough times or not, it's a system that you want to build in your business. And there's 3 steps. I'm going to try and share these secrets from my 2 decades of journey. And I've done more than $100 million in sales revenue. And I'm going to crisp this and crush this and give it to you in a platter in just 3 steps. If you just do this, I can guarantee you, you're going to turn around your business, whether you like selling or not. It has nothing to do with whether you like selling or not. And just before I say that, is it okay if I tell you how I got here and how I really got into selling and tell you a little bit background about me? If you all say yes, say yeah. Okay, only Akshay wants to know.
Okay, Avinash too. Guys, use the chat, abuse it. Let's all have a conversation. Let's be active and engage. Okay, great. So just telling you a little bit about me is, even though today I operate 3 businesses, one is a franchise, one is a partnership, and one is a sort of sole proprietorship. At age 17, at my first year in junior college, I had this unique urge of wanting my own pocket money. And the entire urge of not having to ask from my parents and not having to justify why I deserve that second movie in that same month, or why I deserve that, just the entire thing of justifying that thing, it started haunting me. And that's the time, at the age of 17, that sales came to my rescue. Now, this was this very early era, and most of you, all of you are from India, right? So back in Bombay, India, that's where I'm born and brought up, right? The mobile phone technology was just getting launched, and mobile phones were just launched. This is in the 1990s. And the Indian telcos were literally killing each other, Maxtat, Vodafone, BPL was existing that time. And this time, I actually found a freelance, commission-only sales job. They give it to these 10th standard kids, 11th grade children and stuff. And I used to start getting 25 rupees every SIM card I would sell. This is exactly how my sales journey started. And back in those days, when my classmates would be like playing, partying, enjoying, maybe even studying, I'd be out on the streets, reaching out to uncles, aunties, walking on the road, shop owners, parents of my friends and classmates, sometimes even teachers, and telling them the benefits and packages, why they should have Vodafone versus other telcos like BPL or Maxtat or Airtel in India back then. You guys understand what I mean? And you know how competitive that was? Today, when I understand selling a little more, I understand this was at that time called as high ticket selling. Because if you know the incoming and the outgoing call rates at that time, mobile phones was not something any person from my average industry, my middle class family contact list would have. It was definitely a new segment of income group that I had to start going out and reaching. So today I understand it's something called as a high ticket selling. And how was I doing it at that time? Of course, there was lots of rejections, lots of little feet walking post-college hours, sweating, tired, and somehow juggling between homework, extra tuition classes. But eventually what happened is, after a lot of no's, I figured out a certain pitch which started working. And on an average, started doing 2 to 3 sales of SIM cards every week. Now this very small money, like 100 rupees per week or something. At that time, my pocket money was 2 rupees a day, So 100 rupees a week was some serious money, and it gave me a lot of freedom. But there are a few things that I actually understood out of that. One thing was that I really loved the idea of 100% control on my own income. How many of you are getting what I'm saying? Please give me a raise of hand. Second thing I really learned was how easy it is once you figure something out that how easy it is to make your own money if you want it. And the freedom, this middle class girl had somehow learned and earned the right to live the standard of living that she wanted at that young age. And fast forward today, 20 years of experience in Dubai. Now, what happened is when I got married, this was about 17 years back, I moved to Dubai, and it was an arranged marriage. So in India, in Mumbai, having been in my MBA, having been in college, and doing Rotary and doing a little bit of internships and doing these small whatever time pass jobs everywhere, you build that sort of contact list somewhere, and now you know people, you've come out from certain, and it's easy to sort of, you figure out that country and that market. But what really happened is 17 years back, when I actually was arranged married into Dubai, I had to start all over again. And the only thing I could really figure out was, now Dubai is, 80% of Dubai is different multinational cultures. I mean, there are people from Malaysia, Emiratis are like only 15, 18%, and then there are countries, there are people from all over the world here.
And I had to start from scratch. And I'm like, the culture is different, the value system is different. How am I going to really do something completely again in a new country? You know, so this is when it was really testing things. But my last position was with Samsung Electronics, where I was leading the B2B displays, and literally we were doing $40 million as annual revenue, annual targets. And Samsung, I'll tell you one thing, when you're employed with these big companies, they only give you 60% as your salary, and 40%, which is a very big chunk, is out of your MBOs. And these Koreans actually set extremely high targets. So our target literally was $1 million a week. You think I was doing 1 million meetings a week? Definitely not. So what really helps is how you hone the skills of selling. And the bottom line is that you can have the best product and the best solution in the world, but if you can't endorse customers and clients to come on board and buy it, you're not going to get any income, because we always say sales is equal to income. And the worst thing is that sales is a game of numbers. There are no grays. It's completely black or white. I don't know if you get what I'm saying. People who know, understand sales and like selling would know. And especially worse is when you're employed. If you're employed, if you don't get that number every single quarter, every single month, what do you think happens? What happens? Please tell me in the chat. What happens when you don't achieve your target as a sales employee? What happens when you don't achieve your sales target when you're an employee? Fire. Yes, Avinash. Come on, guys. Only one person knows. Type in the chat. This is an extremely important point. There's stress, there's explanations, there's frustration. Lovely. Thanks, Akshay. Thanks, Lauren. Abhijit says it's embarrassing. There's shouting. You have stress, you have pressure. But bottom line is 90% of the time. Hindi speak, ma'am, please. So क्या होता है जब भी आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा जब आप काम कर रहे हैं और अगर आपका नंबर नहीं आया, जब बॉस ने बोल दिया कि इतना नंबर लाना है, अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे? कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। सो 90% ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि आपको फायर ही करेंगे, आपका जॉब जाएगा। बट मुझे ये पूछना है कि जब हम बिजनेस ओनर्स हैं, ना टेक दिस वेरी डीपली, जब हम बिजनेस ओनर्स हैं और जब हमने सोच लिया है कि हमको इतना नंबर करना है, कि हमको इतना कॉस्ट है हमारा महीने का, कि हमको इतना आएगा तो ही हम काम आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी हम ये बिजनेस जो भी हमने चालू किया है फॉर 50% ऑफ द रूम बीइंग बिजनेस ओनर्स, तभी जब नंबर नहीं आता है हम लोग क्यों चला लेते हैं? दैट्स द बिग क्वेश्चन। जब नंबर नहीं आता है, जो सोच लिया, क्यों कोविड आ जाता है बीच में? कोविड के टाइम ने कितने लोग ने जॉब्स लूज किया? सो कोविड के टाइम में क्यों कोविड आ जाता है? आज भी सैमसंग में लोग नंबर ला रहे हैं, एंड इफ यू नॉट गेटिंग दैट नंबर, आपको लाजिम निकालना है कंपनी से। सो द पॉइंट इज सेल्स इज इनकम। जब तक आपको सेल्स नहीं है तभी तक आपका कंपनी में कोई काम नहीं है। एंड वेदर आप बिजनेस ओनर है कि आप एम्प्लॉई है, एंड अगर किसी को भी लगता है कि सेल्स मेरे लिए नहीं है तो फिर बात ही नहीं है इधर। सो एवरी पर्सन दुनिया में पूरा देयर इज इन द वर्ल्ड 1 में से 9 आदमी लोग अगर सेल्स जो रहता है उसमें वो लोग बोलते हैं खाली एक ही आदमी ऑफिशियली डेजिग्नेशन में सेल्स रहता है। लेकिन जब देखेंगे फ्रॉम 2 to 9 जो बैलेंस लोग हैं उसमें भी जब डीप देखने को जाएंगे तो भी वो सेल्स का ही काम कर रहा है। आप में से किसी ने भी शादी किया है इधर? एनीवनस मैरिड? शादी किया है किसी ने भी? हाँ, ओके। तो जिसने भी शादी किया है आप सेल्स में है, समझ लो। आपकी बीवी को आप ला ही नहीं सकते थे जब तक आपने शादी नहीं किया है। अगर शादी किया है और अपनी अभी तक रखा है
तो बच्चे लोग सबसे दुनिया में सबसे बेस्ट सेल्स पीपल रहते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको एक पावर पॉइंट शेयर करूंगी। एक सेकेंड, सॉरी माय हिंदी कैन बी अ लिटिल वियर्ड बट प्लीज इग्नोर द एक्सेंट। The Hindi is great. Please continue with it, Alifia. Thank you so much. Appreciate it. Okay, so just very quickly I'll share so आज हमको जो दिखाना है, I want to show 3 steps to win। कैसे हम clients ला सकते हैं consistently, मतलब मार्केट अप है कि डाउन है कि कुछ भी है, कैसे 3 चीज खाली करेंगे तो कैसे हमको क्लाइंट्स लाना ही है बिजनेस के लिए। ओके, किसको जानना है? जिसको भी जानना है प्लीज से आई ओके इन द चैट, ठीक है। तो जस्ट वेरी क्विकली हमने आपको ऑलरेडी बताया मैं क्या है, कौन है, एंड मेरा इंट्रोडक्शन भी हुआ था। हम ग्लोबल सेल्स ग्रोथ अथॉरिटी है। 18 साल से हम हैंड्स ऑन सेलिंग कर रहे हैं। ओवर $100 million का रेवेन्यूज निकाल चुके हैं। एक्चुअली इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड अ लॉट मोर। हमने स्कूल से चालू कर दिया था फ्रॉम द अर्ली एज ऑफ 16 and 17। और जो समझ में आया कि वो फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम है, कि किस पे हमारे ऊपर है, हमारी मुट्ठी में है, जितना हमको ऊपर करना है कि कम करना है। सो आज हम रूफटॉप सेल्स का कंपनी चलाते हैं जिसमें हम सेल्स ट्रेनिंग और कंसल्टिंग करते हैं। और एक और कंपनी है जो 10x CEOs है, ये हमने फ्रेंचाइज लिया है। अभी ये बिजनेस ओनर्स को मैं बता रही हूँ, देयर आर एम्प्लॉइज एंड सोलोप्रेन्योर्स आल्सो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम बिजनेस चालू करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि 80% बिजनेस फेल हो जाता है। किसी ने सुना है ये स्टैटिस्टिक? किसी ने सुना है? ये स्टैटिस्टिक्स से रिसर्च में आता है कि 80% बिजनेस फर्स्ट 3 years to 5 years में फेल ही हो जाता है। फेल होने का 2-3 चीज भी बोल सकते हैं। कोई लोग बिजनेस चलाते हैं लेकिन पैसे बनाते नहीं है, उसको भी फेल्ड बिजनेस ही बोलते हैं। हम बोलते हैं कि भाई बिजनेस है 10 साल से है, वो पैसा कितना बना रहा है बिजनेस। तो हम अभी कोई बोलेगा भाई पैसा सब कुछ स्टोरी होता है। भाई पहले पैसे बना दो फिर बोलो कि पैसा सब कुछ नहीं है। ओके, सो हमने ये फ्रेंचाइज चालू किया बिकॉज अगर हमको रेस्टोरेंट चालू करना है तो मैकडोनल्ड चालू करें या कोई भी अपना खुद का नाम का रेस्टोरेंट चालू करें, सक्सेस रेट फॉर फ्रेंचाइज 70% है। 70% का फ्रेंचाइज है तो सक्सेस है पहले साल में, कि पहले 2 साल में सक्सेस है। आपका कैश रिटर्न हो जाता है, जो आपने इन्वेस्ट किया, कभी डाउन पेमेंट करना पड़ता है कभी धंधा चालू करने के लिए। लेकिन अगर फ्रेंचाइज है तो अगर चालू करना है तो पहले लर्निंग को फ्रेंचाइज से कर सकते हैं। तो दैट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट। ये 10x CEOs का प्लेटफॉर्म था जिसको हमने फ्रेंचाइज में चालू किया और उसके बाद हमने रूफटॉप सेल्स चालू किया। आज हमको बिजनेस को कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स ज्यादा मिल सके, वो हमको अच्छा लगता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोमेटिकली कैसे आ सकता है। अगर हम काम करके थोड़ा सा रेवेन्यू मिलेगा हर महीना, ऐसा चाहिए कि हमको एक बार काम कर लिया लेकिन रिपीटेडली ऑटोमेटिकली पैसा आना ही है एवरी मंथ। कौन सा आपको अच्छा है? ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक पैसा चाहिए कि काम कर करके एवरी मंथ काम किया तो ही इनकम हुआ कंपनी में? ऐसा चाहिए कि हमको ऑटोमेटिक करके चाहिए, राइट? सो अगर थोड़ा सा टेक्निक्स लोग यूज करेंगे तो फर्स्ट साल में 2 times आपका रेवेन्यू कर सकते हैं एंड विद इन 5 years इवन 10 times। अगर आपको इतना बराबर से आप एक्शन लेंगे तो स्काई इज द लिमिट एंड इजीली होता है। सो दिस इज इट माय रूफटॉप सेल्स। और 10x CEOs का प्लेटफॉर्म है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर एक्सचेंज। वो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स लाइक एप्पल, ये लोग जो स्टार्ट हुआ था बिग कंपनीज, उन लोग को वो लोग कंसल्ट करते हैं। सो दैट लर्निंग कर्व, जो बिग कंपनीज का जो लर्निंग कर्व अगर हम छोटी कंपनीज में लगाएंगे, उसका जो सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी अगर हम छोटे से छोटी कंपनी में लगाएंगे तो ऑटोमेशन होता है एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू अचीव। ऐसे नहीं कि भाई रोज जाके फोन करो, रोज जाके मीटिंग करो तो ही धंधा आया। अगर हम ऐसे करें कि बस
कुछ सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली चलता है, तो कैसे रहेगा? That's the dream, and that's what we want for our business. Okay, so this is our mission. We help business clients लाना, और जो बिजनेस ओनर है, अगर आप 3 महीने का हॉलीडे नहीं ले सकता है, दैट मीन्स आप बिजनेस में है, पूछो। समटाइम्स अगर आप 3 महीने का हॉलीडे नहीं ले सकते हैं, तो शायद आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही है, शायद आप जॉब नहीं है, अलग तरह के तरीका जॉब है जो आपको छुट्टी भी नहीं दे सकता और आप जा भी नहीं सकता, और उससे अच्छा तो जॉब ही रहता। अगर आप 3 महीने का, दैट मीन्स आपका बिजनेस सिस्टम्स पे नहीं चल रहा है। अगर सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी बराबर से लगा सकते हैं और पीपल को बराबर यूज कर सकते हैं, तो कैसे करना है ये, हाउ टू डू इट? तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू हमारा कंसिस्टेंट हो जाए, फिक्स्ड हो जाए कि भाई इतना 100,000 या इतना लैक्स आना ही है। हमको पता भी है कि भाई दिवाली है कि क्रिसमस है कि ईद है, जो भी है इतना आना ही चाहिए। इट शुड नॉट बी दैट कभी आ गया कभी नहीं आया। तो और ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं कि अपना टीम है और अपना सेल्स टीम, इसके लिए मैंने आप लोगों को पूछा कि बिजनेस 3 लोग से ज्यादा है कि आपका सोलोप्रेन्योर है। नाउ सोलोप्रेन्योर इज अ ट्रैप। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप खुद जितना टाइम काम करेंगे तब तक ही आपका धंधा आएगा। जब आपने बंद कर दिया जाना तो नहीं आया, तो वो लिटरली इन अदर वर्ड्स जॉब ही रहता है। तो आपको सोचना है कि आप कैसे ऑटोमेशन लाए, और वो टिप्स मैं आपको अभी 3 टिप्स दूंगी जो आप अगर चालू करेंगे अपने बिजनेस में, वो आपको आगे बहुत कंफर्ट लेके आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाएगा। ओके, किसको जानना है प्लीज यस दीजिए आप चैट में। I'm actually enjoying this. I'm really enjoying this. I'm so excited. Okay, lovely. Brilliant. Actually, I've been in Dubai 17 years से, तो only time हिंदी बोलते हैं जो टैक्सी में बोलता है और कुछ रेस्टोरेंट में बोला कि भाई ये दे दो, खाली इतना 2-3 लाइन का ही यूज किया था इतने साल से। So I'm really excited. I'm enjoying this a lot. Okay, brilliant. Okay, so okay, we're still sharing. So number 1, step 1, know your numbers. Okay, किसको अपना नंबर पता है कि आपको कितना रेवेन्यू, जिसको भी शेयर करना है चैट में दो मुझे कि नेक्स्ट ईयर या टिल एंड ऑफ दिस ईयर कितना आपको नंबर अपना कंपनी में, इवन इफ यू आर सोलोप्रेन्योर, अगर आप एम्प्लॉई भी है, एम्प्लॉई में आप अपना सेल्फ अर्निंग भी बोल सकते हैं कि आपको खुद का अर्निंग कितना करना है टिल द एंड ऑफ द ईयर। Step 1 is you have to know your numbers, कि कितना रेवेन्यू करना है आपको, कितना होना चाहिए आपका बिजनेस का रेवेन्यू। सबको पता है? किसको पता है? आप डालो चैट में, अगर आप ओपनली बोल सकता है तो बोलो, नहीं तो आपको खुद का पेपर में लिख लो कि कितना आपको रेवेन्यू चाहिए। 1 crore, 5 crore, 8 crore, great, amazing, fantastic. सबको ये is the first step. आपको खुद का रेवेन्यू पता ही होना चाहिए। ओके, सेकंड स्टेप है कि आपका जो प्रोडक्ट है और जो आप सर्विस करते हैं उसका कितना प्राइस है। एक सर्विस या एक प्रोडक्ट, अभी आप बोलेंगे मेरे पास 100 प्रोडक्ट्स है कि 50 प्रोडक्ट्स है या जो भी है, आप उसका कितना पर यूनिट एवरेज भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 4-5 प्रोडक्ट है, उसका एक का 50, एक का 100, एक का 1000, एक का व्हाटएवर, तो टोटल प्राइस करके डिवाइड बाय टोटल, और एवरेज प्रोडक्ट प्राइस आपको पता होना चाहिए। आपको पता है? कैन एनीवन गिव फॉर फ्यू एग्जांपल्स कि आपका प्रोडक्ट प्राइस क्या है एवरेज? ओके, सो फर्स्ट थिंग इज कि आपका अमाउंट कितना है और आपका पर प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस कितना है। ओके, आई थिंक द शेयरिंग स्टॉप। ओके, नेक्स्ट है कि आपका कितने आप फोन करते हैं तो आपका कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आप अगर 10 फोन करते हैं कस्टमर को तो आपका कितना डील क्लोज होता है? 3 क्लोज हो जाता है कि 5 क्लोज हो जाता है कि 7 क्लोज हो जाता है कि 10 के 10 क्लोज हो जाता है? कितना आप डील घर लेके आते हैं?
कि आपने अगर 5 लोग को फोन किया, आपने 10 लोग को फोन किया, आपका कितना क्लोज हो जाएगा कस्टमर? आप डालो नंबर। इफ यू हैव 10 कस्टमर्स दैट यू कॉल और आपने अपना प्रोडक्ट और सर्विस दिया, तो कितने लोग ने आपको ऑर्डर दे दिया? वो नंबर डालिए आप प्लीज चैट में। 2, ओके, लवली। 3 आउट ऑफ 10, 5, ओके। 10 to 1, 1 हो गया। 75, ओके, लवली। अभी क्या होता है सेल्स में? सेल्स इज एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल, एक नंबर का ही रहता है। अगर आपको पता है कि 10 करके आपको एक डील हो जाता है, ओके, अभी आपको कितना अमाउंट का रेवेन्यू मंथली चाहिए, तो उसके बाद आप मैच करेंगे कि आपके कितने लोग को मिलना है। इजी, इजी कि नहीं? इजी है तो इजी डाल दो चैट में। ये नंबर आपको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नंबर आपने जान लिया और इसको फिर ट्रैक करना है, ओके। अभी आपको रेवेन्यू गोल में आपको पता चल गया कि फॉर एग्जांपल आपको $100 चाहिए। अगर आपको महीने का रेवेन्यू चाहिए 100, मैं इसे एग्जांपल ले रही हूँ। अगर आपका एक प्रोडक्ट का कॉस्ट 10 है, ओके, मतलब उसका मतलब आपको 10 कस्टमर चाहिए। एवरीवन विथ मी? आपको $100 चाहिए। एक प्रोडक्ट का कॉस्ट $10 है, तो आपको 10 कस्टमर चाहिए। ओके एवरीवन, मेरे साथ? गॉट इट? अभी आपने 10 लोग को फोन किया और एक ही क्लोज हुआ, तो आपको कितने लोग को फोन करना है? आंसर दीजिए मुझे चैट में। कितने लोग को फोन करना है? आपको महीने में चाहिए 10 कस्टमर, बिकॉज आपका रेवेन्यू गोल है 100 और आपका एक प्रोडक्ट $10 का है, तो आपको महीने में 10 कस्टमर चाहिए। अभी आपने 10 लोग को फोन किया तो एक ही कस्टमर क्लोज होगा, तो आपको कितने कस्टमर को फोन करना है महीने में? 100 कॉल्स, राइट? डन। 100 कॉल्स करना है। अभी आप खुद कर सकते हैं कि आपको एक पूरा आर्मी लगा देना है कि पूरा क्रिकेट टीम लगा देना है। 100 कॉल्स करना है, फिनिश। आप अगर 100 कॉल्स करो, नहीं तो आप 10 में से 2 को क्लोज कर दो, 2 ऑर्डर लेके आओ। अगर 2 ऑर्डर लाएंगे तो उसका अपना इतना कम हो जाएगा, 50 कॉल्स करना पड़ेगा। इतना प्रिडिक्टेबल है, कुछ भी उसमें ऊपर या नीचे हो ही नहीं सकता है। जब हम सैमसंग में थे तभी हमने एक पहला साल हमको मिला था $35 मिलियन का टारगेट। 35 मिलियन मतलब हर हफ्ते का 3 वीक में हम लोग को 3 मिलियन निकालना है और चौथा वीक फ्री था। लेकिन जब हमने टारगेट अचीव कर दिया, सैमसंग ने सोचा कुछ घोटाला होगा इसमें, कोई भी हम कभी टारगेट, उसका क्या है कि 40% देना ही नहीं है, तो क्या टारगेट नॉर्मली दुनिया में कोई भी अचीव नहीं करता, लेकिन जब हो गया तो नेक्स्ट ईयर उसने 45 मिलियन का टारगेट कर दिया। यू आर गेटिंग मी? तो अभी 45 मिलियन कैसे करेंगे? तो हम लोग को यही फॉर्मूला लेके वापस आए जो बोर्ड पे और देखना पड़ा कि भाई अभी क्या कर सकते हैं। महीने में इतना चाहिए, किसको किसको और बेच सकते हैं, क्या क्या नया कर सकते हैं, कितना लोग और ऐड कर सकते हैं। ये ही तो है गेम सेल्स का। और ये जो नंबर आपने 100 करोड़ 1 करोड़ जो भी डिसाइड कर दिया है, अभी उसमें शिफ्ट नहीं होना है। अगर वो नंबर पे आपने शिफ्ट किया और चला दिया कि अगर नंबर नहीं आया और चला दिया तो बस फिर आप सोच लो आपको फायर कर दो अपने आप को, आप कंपनी बंद कर दो, यू आर फायर्ड। आपको धंधा चालू करने का है ही नहीं, परमिशन ही नहीं है। समझे? who's with me? कौन ये ऐसे सीरियसली ले सकता है सेल्स? कौन मेरे साथ ये चलने का काम ही नहीं है इसमें, राइट? who's with me on this? कौन ये कमिटमेंट लेगा? कमिट लेने वाला है तो कमिटमेंट डालो मुझे चैट में। प्लीज पुट कमिटमेंट इन द चैट। who's ready to take this commitment? जो आपने नंबर सोच लिया, इसमें आपको जितना कॉल करना है तो बस वो करना ही है, फिनिश, नो डिस्कशन। और इतना सिंपल फॉर्मूला है। अभी ये 100 कॉल्स कैसे करना है वो क्वेश्चन दिमाग में किसको आ रहा है? बोलो। ये 100 कॉल्स कैसे करना है वो क्वेश्चन, अभी दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट?
Okay, so first step, know your number. Okay, everyone knows your number. ठीक है? Okay. अभी second step जो होता है is everyone with me here ना, and commitment चाहिए, because ये commitment अगर आपने खुद को नहीं किया, so whether you're employee or solopreneur or a business owner, there are 3 steps, but the second step is for employees and sales executive. For business owners, all the 3 steps you have to apply, but for second step is for employees. Now normally when you're an employee, आपको फर्स्ट स्टेप भी करना है, बिकॉज अगर आपको खुद का इनकम इतना चाहिए, अगर आपको पता है कि आपका फैमिली का कॉस्ट इतना है और आपको खुद का इनकम इतना चाहिए, तो फिर चाहिए अभी, नाउ मेक इट हैपन, करेक्ट? वो कैसे करेंगे? वो जॉब में से इतना मिलेगा, कुछ फ्रीलांस कर सकते हैं, कुछ साइड में कर सकते हैं, जो भी करना है करो, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि भाई मुझे इतना इनकम चाहिए तो चाहिए, नाउ मेक इट हैपन. ओके, तो वो ब्रेक डाउन करके कैसे करना है, कितना, खाली वो क्वांटिटी लेके आओ कि एक्शन कितना करना है. अभी हम जब कोचिंग और कंसल्टिंग सेल्स का करते हैं, हम ऐसे स्ट्रेस, मेरा हम लोग का बॉस आ जाता था, यार ये महीने का टारगेट नहीं है, यू गाइस आर यूजलेस, इतना गाली सुनने का, हर जब देखो तब स्ट्रेस और गाली पे गाली. तो आई एम लाइक, जब हम कोचिंग करते हैं तो हमसे बाय नंबर की बात मत कर, 100 कॉल करना है खाली उसकी बात कर, 100 कॉल्स करना है, आज कितना हुआ, 30 डेज है महीने में, 100 को डिवाइड कर दे, एक दिन में कितना कॉल करना है, प्लीज गिव मी द नंबर, एक दिन में कितना कॉल करना है. डोंट टॉक टू मी अबाउट 100,000 या जो भी, सीधा मुझे बोलो कि एक दिन में 15 कॉल करना है. अभी 15 कॉल सब, अगर मेरे पास 2 पीपल है तो 7 कॉल एक को करना है. रोज सुबह में आके खाली पूछो कितना कॉल किया तूने, 7 किया या 10 किया कि 5 किया, दैट्स इट. कुछ स्ट्रेस क्यों देना यार किसी को? Focus on the number of calls you're going to do. All with me? Okay. अभी second step. Okay. Second step है sales process. ये इसको अभी आपको सिस्टम बनाना है, तो अभी ये 100 लोग कहाँ से ढूंढेंगे, करेक्ट? तो ये है second step, which is the sales process. ये सेल्स को एक सिस्टम बना. मैं अभी आपको कुछ नया नहीं बता रही हूँ जो आपने कभी सुना नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, लेकिन लोग करते नहीं है, बिकॉज ऑफ विच फिर कोविड पे नाम जाता है. अभी कोविड है तो कोविड है, बट क्या करेंगे आप? ओके, सो दिस इज द सेल्स प्रोसेस. सेल्स में चीजें करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा वो सब करेंगे तो कंप्लीट होता है. पीपल जस्ट से बाय सीधा हम स्टेप 4 करेंगे और सीधा हम 7 पे कौन डिपेंड करता है, किसका धंधा रेफरल्स और वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है? प्लीज टेल मी, किन लोग को लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल स्ट्रेटेजी 50% या 70% किसका धंधा खाली वर्ड ऑफ माउथ से आता है? ओके, भूषण का किसका नहीं आता है वर्ड ऑफ माउथ से? नो बोलो या मी बोलो या नॉट मी बोलो. जिसका धंधा वर्ड ऑफ माउथ से आ जाता है, सेल्स, रेफरल्स, रिपीट सेल्स, उसमें आता है. माइनस फॉर अविनाश इज फॉर from word of mouth, हाँ? Okay, word of mouth. Okay, ठीक है. तो 80%, 70-80% लोग बोलते हैं कि मेरा तो 70-80% बिजनेस word of mouth से आता है. I'm sorry, but word of mouth cannot be a sales strategy. थोड़ा सा आप लोग को शॉक दे रही हूँ. Word of mouth cannot be a consistent or predictable sales strategy. Okay. सेल्स के पहले आता है मार्केटिंग. अगर आपने कॉन्स्टेंटली सेल्स एक्टिविटी नहीं किया, आप खाली डिपेंड कर रहे हैं कि भाई कोई बोल देगा तो आ जाएगा, एक्सीडेंटल सेल्स नहीं है. हम लोग को इधर प्रिडिक्टेबल, कंसिस्टेंट करना है, जो आपके बगैर धंधा चले वैसे करना है. हम लोग को सिस्टम चलाना है कि आप 3 महीने का हॉलीडे ले सके. Who wants to take a 3 months holiday? 3 months holiday लिखो प्लीज. किसको हॉलीडे पे जाना है? हॉलीडे डालो. 3 महीने का हॉलीडे नहीं कर सकते तो आप बिजनेस ओनर ही नहीं हुआ, उससे तो अच्छा एम्प्लॉई हो जाओ. या तो ये सिस्टम बनाने के लिए आपको ये फनल का लाजिम जरूरत है. अभी इसमें से व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबका कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है और कौन सा वीकेस्ट पॉइंट है, ये बताओ मुझे अभी. विच इज योर वीकेस्ट एरिया एंड विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया? सो वीक एंड नंबर डाल दो और स्ट्रॉन्ग और नंबर डाल दो.
which is your prospecting है, building rapport है जहाँ हम friendship बनाएंगे. Prospecting मतलब हम फोन कॉल करेंगे, कोल्ड कॉलिंग है, या या सोशल मीडिया में हमने लीड जनरेशन किया, या कुछ डेटाबेस ले लिया किसी से और वो ऐसे ही जो ईमेल कर दिया पूरा लिस्ट को, और वो सब प्रोस्पेक्टिंग रहता है. रैपोर इज पहले फ्रेंड्स बनना है. अगर आपने पहले कस्टमर के साथ फ्रेंडशिप नहीं किया तो वो नहीं खरीदेगा आपके पास. आप जितना भी उसको फोन करो वो आपके पास से नहीं खरीदेगा. तो रैपोर बिल्डिंग, अगर वो आपने कभी भी किसी दोस्त के पास से आईफोन खरीदा है जस्ट हायर प्राइस में, लेकिन कहीं और से सस्ते में मिल रहा था फिर भी नहीं लिया, लेकिन दोस्त के पास से ले लिया. करेक्ट. सो एवरीवन विल ऑलवेज बाय फ्रॉम फ्रेंड. अगर आपको सेम प्राइस 3 जगह से मिल रहा है, आप जिसके साथ मोर कंफर्टेबल हुए, जो आपके साथ हंस के बात कर लिया, आप उसके पास से खरीदेंगे. दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ रैपोर बिल्डिंग. अगर सेम आईफोन 3 जगह से मिल रहा है, लेकिन आपके साथ जो अच्छा बात किया, जो आपको फॉलो अप किया, थोड़ा सा कॉल किया, आपकी फैमिली के बारे में पूछ लिया, बच्चे के बारे में पूछ लिया, वो सब जो किसने अच्छे से आपको बियॉन्ड बिजनेस का रैपोर बिल्ड कर दिया, आप उसके साथ से करेंगे. सो 2, 4 and 5 is strong and 3, 7, 4 is. So the most important is, what is the most important from this? Just give me a number. प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आपने प्रपोजल बना के दिया. स्टेप 4 में आपने प्रपोजल दे दिया, प्रेजेंटिंग सोल्यूशन, प्रपोजल बना दिया. स्टिल फिर स्टेप 5 में क्या होता है? ऑब्जेक्शन होता है. उसको 10 यार ये ब्लू कलर क्यों है, ग्रीन कलर क्यों नहीं हो सकता, इसको यार ऑरेंज है तो क्या हुआ फ्रूट, उसको रेड ऑरेंज बना के दे दे. यू नो समटाइम्स पीपल कम विद पूरी वियर्ड जैसा बोल देते हैं. क्लोजिंग सेल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके. 6th is closing sale, and then 7th is repeat referrals and customers, right? 6, everyone is saying closing sale is more important. Bharat is saying 7th, repeat and referrals is important. Upendra is saying building rapport is important. Okay, nice. 3 and 4 is important. Matlab need the identification and presenting solutions. किसी ने भी 1 नहीं बोला अभी तक? किसी को भी 1 नहीं लगता है? प्रोस्पेक्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपने नया फनल ही नहीं बनाया, वो ऊपर है, सबसे ऊपर प्रोस्पेक्टिंग है. किसके साथ आप रैपोर बिल्डिंग करेंगे, किसको आप प्रेजेंटेशन देंगे, किसको क्लोज सेल करेंगे? नया धंधा तो फैलाओ. इफ यू सी रेफरल्स इज लास्ट, इफ यू डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ माउथ फॉर योर बिजनेस, इट विल नेवर बी कंसिस्टेंट. It will never be consistent. आपको consistent और predictable business लाना है, तो it's always marketing and then sales. अभी most people just do direct selling. In prospecting क्या करेंगे? सब लोग खाली direct जाते हैं. आज की तारीख में ऑनलाइन मीडिया हो गया है, डिजिटल मीडिया हो गया है. आज की तारीख में कितना नया स्ट्रेटजी हो गया, वेबिनार्स हो रहे हैं फ्री में, कितना क्रॉस सेलिंग हो रहा है. ईमेल मार्केटिंग हैज बिकम सो पावरफुल. कहीं से भी डेटाबेस लाके ईमेल डाल दो, तो कोल्ड कॉलिंग से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है. तो कैसे आप नया हम लोग जब कोविड हुआ और सबका बाहर जाना बंद हो गया, राइट? तो क्या हुआ? तो वी वर वर्किंग विद दिस कंपनी, और वो जब भी आप डीप जाएंगे तो देखेंगे कोई भी कंपनी इंक्लूडिंग योर्स जो 1-2 साल से जिसके साथ कस्टमर के साथ बात करते हैं उसके ही साथ बात कर रहे हैं अभी भी. यार नया कस्टमर ही कहाँ है? जो लास्ट 2 साल से जो आप किसके साथ काम के बात कर रहे हैं, वो ही आपको उसके गधा मजूरी कर रहे हैं आप लोग. बट गो एंड गेट द न्यू सेट ऑफ कस्टमर्स. तो फिर हम लोग ने जाके 3 साल पहले का, 5 साल पहले का डेटाबेस निकाला और उसको बोला अभी इन लोग को खाली हाय बोल, और उसको बोला खाली बच्चे कैसे हैं इतना ही पूछ. इसको बोल कोविड में सब सेफ साफ है कि नहीं. That's what we did. That's all we did. इसको बोला टेंशन मत ले, सेल्स छोड़ दे, फ्रेंड्स बनाते हैं. कि जिसके भी साथ 2 साल से 3 साल से बात नहीं किया उन लोग को कॉल कर. So prospecting is the most important. जब तक आपका नया prospect ही नहीं आया, तब तक आपने आगे कुछ भी नहीं करना है. Everyone with me? सबको समझ में आया प्रोस्पेक्टिंग का मतलब? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नया कस्टमर कैसे लाना. मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग करो,
पीपल से मार्केटिंग में मैम मेरे पास बजट नहीं है मार्केटिंग करने के लिए, बट दैट्स व्हाई यू टॉक अबाउट योर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो आपको अगर मार्केटिंग में 10 रुपए लगता है और आपको वो अगर कस्टमर क्लोज होता है तो 100 रुपीज मिलता है, तो इज इट वर्थ इट? आप कितनी बार ये 10 रुपीज डालेंगे, राइट? सो व्हाट्स द इट्स द कॉस्ट फॉर you have to never see marketing as a cost, okay? And third point, तो first point था नंबर जान लो, उसमें जान लो कि आपको कितने लोग को फोन करना है, okay? Everyone with me? Second point था सिस्टम रहता है, तो उसमें पहले तो नया मार्केटिंग करो, नया लोग को लाओ और फिर उसको पूरा फनल चेक करो, एक एक चीज। उसके बाद जो प्रपोजल आएगा उसका क्या प्रॉब्लम है, नीड क्वालिफाई करेंगे, फिर उसका क्या ऑब्जेक्शन है, उसको क्या क्या है, नेगोशिएशन करेगा, फिर क्लोजिंग करेगा, फिर फाइनली उसको पूछेंगे कि रेफरेंस बिजनेस दे दो। अभी रेफरेंस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट कोई पूछता ही नहीं है कि मुझे रेफरेंस दो। 80% of the sales people don't ask for references, 80%। और कस्टमर को पूछेंगे कि अगर उसने मेरे पास मांगा तो मैं देगा। 90% ऑफ कस्टमर बोलते हैं अगर मांगेगा तो मैं देगा, क्यों नहीं देगा, लेकिन मांगते ही नहीं है लोग। तो थंब रूल ऑफ सेल्स इज जब तक नहीं मांगा तब तक आंसर नो ही है, अगर मांगेगी ही नहीं तो आंसर तो नो ही है ना, तो मांग लो, ठीक है? तो उसका चांसेस यस का भी तो है ना। एंड थर्ड पॉइंट, ना अभी थर्ड पॉइंट, इधर रूम में जो भी सोलोप्रेन्योर्स है ना, आप प्लीज आपको बिजनेस नहीं बताओ, आप अपने आप को एम्प्लॉइज ही बता दो। सॉरी थोड़ा सा डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन जो भी सोलोप्रेन्योर्स है, आपका बिजनेस कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल नहीं होना है जब तक आपने ऑटोमेशन नहीं डाला। अगर एंड एज अ बिजनेस सोलोप्रेन्योर अगर आप अकेले हैं, आप कभी भी सेल्स कंसिस्टेंटली नहीं कर पाएंगे। I'll tell you why. Because एक बिजनेस में हम लोग को कितना सारा काम करना है। Let me stop sharing for 2 seconds. ये थोड़ा सा आपको डायरेक्ट फेस पे आएगा, लेकिन I can be your best friend, but I rather not. मैं आपका फ्रेंड बनने के लिए नहीं आया है, हम आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आया है। So that's important, right? And that's what you would rather stronger friendship हमारा होगा अगर आपका धंधा बढ़ गया, right? So important is you have to find automation, मतलब सेल्स ऑटो पायलट पे आना ही है। अगर आप जाके क्लोज किया तो ही आपको बिजनेस आया, that's not the best strategy। मतलब आप 3 महीने का हॉलिडे ले सकते हैं और आपका धंधा बैंक अकाउंट में पैसे आते रहता है, वो कैसे कर सकते हैं? That's the strategy। Everyone with me? किसको चाहिए 3 month हॉलिडे? सोलोप्रेन्योर्स, राइट? सोलोप्रेन्योर्स को भी हॉलिडे का हक है यार। तो जॉब में ही तो हम पेड लीव मिल जाता है, उससे अच्छा तो हम तो जॉब छोड़ दिया बिकॉज हम लोग को फ्रीडम चाहिए एंड ऑल दैट, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए ना। सो दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू मेक अ बिजनेस? बिजनेस वो होता है जो आपके बगैर चलता है, जो सिस्टम्स एंड स्ट्रैटेजीज पे चलता है, जो सेल्स स्ट्रैटेजी, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाते हैं उस पे चलता है। एवरीवन विद मी ऑन दिस? So if it's a little hard, I don't care, okay? But it's important. Okay, तो sales team को कैसे चलाना है? Now, कुछ लोग बोलते हैं यार sales is not for me. कुछ लोग बोलते हैं sales मैं तो बहुत अच्छा है sales में, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा and all that. And कुछ लोग बोलते हैं कि यार तो sales में क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। एक क्लोज करता है, एक दरवाजा खोल देता है। समटाइम्स दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, वो नेचर जो होता है उसका, वो अलग रहता है। जो अच्छे से स्माइल करके जो खोल देगा दरवाजा, लाइक कोल्ड कॉल जो करते हैं, उन लोग का स्किल सेट कंप्लीटली, माइंडसेट, स्किल सेट सब कुछ बहुत अलग रहता है। और जो क्लोज करता है, जो क्लोज जाके वो अग्रेसिव होता है, वो उसको प्रोडक्ट नॉलेज रहता है, वो एक्सपेंसिव रिसोर्स थोड़ा सा होता है, जो क्लोज कर देता है डील। समटाइम्स बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग में आप 100 लोग को बात करेंगे, लेकिन
उसमें से खाली 10 या 20 ही वर्थ इट होंगे कि जिसको आपको जाके मीटिंग करना जरूरी है। दूसरे लोग तो यू शुड नो हाउ टू थ्रो पीपल आउट। आपको ऐसा चाहिए कि 3 महीने से आप वो सेल पे काम कर रहे हो, उसके बाद पता चला कि यार ये सेल लॉस हो गया, ऐसा करना है। उससे अच्छा है कि ऊपर ही 1 कॉल के 2 कॉल करके ही 3-4 कॉल करके पता चल गया कि भाई इसको ज्यादा भाव दे के फायदा नहीं है, ये हमारा टारगेट लिस्ट में नहीं फिट हो रहेगा, ये इसके पास बजट नहीं है, कि इसके पास माइंडसेट नहीं है, कि उसने हमारे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज नहीं किया। व्हाटएवर, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसके साथ आपको ज्यादा परस्यू करके फायदा है कि नहीं है। लेकिन वो आप ड्रॉप करो कस्टमर को, लेकिन फर्स्ट 2-3 मीटिंग्स में करो। ऐसे नहीं कि भाई 3 महीना काम किया उसके बाद पता चला यार ये तो टाइम वेस्ट हो गया, राइट? बिकॉज आपको तो टारगेट है। सेल्स पीपल एज एम्प्लॉइज, मैं आपको बता दूं, हम लोग अगर 2019 में बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर भी बन गया, हाईएस्ट सेल्स अचीव कर दिया, जनवरी 2020 में 0, यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो यू कैन बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन 2019, लेकिन जनवरी में तो आपको 0 प्लेट से ही चालू करना है। तो यू हैव टू कीप ऑन परफॉर्मिंग। तो 3 महीना अगर किसी ने एक के पीछे पड़ गए और नहीं दिया उसने धंधा, तो देन व्हाट, हाउ डू यू प्रोटेक्ट, हाउ डू यू बिकम मोर कंसिस्टेंट एंड मोर प्रेडिक्टेबल? हमको ये चाहिए कि हमने जितना भी एफर्ट दिया हमको रिटर्न्स आना ही है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा आप आदमी है आप। सो अगर आप रिटेल शोरूम में जाएंगे, जो रिटेल मॉल में जो रहते हैं, वो लोग डिस्प्ले सेल्स पीपल होते हैं। लीस्ट बॉर्डर फॉर कस्टमर, लीस्ट बॉर्डर फॉर सेल, ये लेफ्ट बॉटम। और अगर आप क्लोजर है, उसको खाली क्लोज ही करना है। ही इज लीस्ट बॉर्डर के यार कस्टमर को खुशी हुआ कि नहीं, उसको तो धंधा क्लोज करके नेक्स्ट कस्टमर पे जाना है, राइट? किसने ऐसा, दैट्स व्हाई पीपल डोंट लाइक सेल्स पीपल, कि वो क्लोजर लोग रहते हैं। नो, अच्छे सेल्स पीपल से दे आर एरोगेंट। Who's heard sales people are arrogant and rude, full of themselves, right? Arrogant का word Hindi में I'm not sure, but okay. So these are different types of sales people. So आपको देखना है कि आपके स्ट्रक्चर में कौन है और कौन नहीं। Sometimes it's good to have a very junior prospecting के लिए और closer for this thing. लेकिन एक आदमी या 2 आदमी तो आपको एक आदमी you can always start with, you know. Now 55% people are making their lives in sales don't have the right skill to be successful. Because मैं खुद जब भी मैं 17 years से सेल्स में घुस गई, लेकिन कभी भी मैंने ट्रेनिंग नहीं किया सेल्स का। Who agrees with who understands what I'm saying? Sales people never go for sales trainings, that right? मैं 20 years से सेल्स में है, लेकिन आज जब मैंने अपना खुद का कंपनी चालू किया, तब मैं लिटरली महीने में 2 या 3 ट्रेनिंग में खुद के ले जा रही हूँ। लेकिन जब मैं एम्प्लॉई थी, $40 मिलियन कर रही थी, लेकिन फिर भी कभी सेल्स ट्रेनिंग नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं जब सेल्स लीडर बन गई थी इन माय कंपनी, I'll just take 2-3 minutes more. Are you looking on time? Continue, please continue. Okay. जब मैं सेल्स लीडर बन गई थी, लिटरली जब मेरा फर्स्ट टाइम सेल्स प्रमोशन हुआ था एज अ कंपनी में, कैसे सेल्स लीडर बनाते हैं लोग, जब आपका अच्छा नंबर है तो आपको सेल्स लीडर बनाएंगे। एम आई राइट? अगर आपका सेल्स अच्छा आएगा तो आपको लीडर बना देते हैं, करेक्ट? इट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं सेल्स लीडर बन गई थी, आई वाज कंपीटिंग मेरा टीम के साथ कि भाई मेरा सेल्स, बिकॉज लोग सेल्स लीडर बना देते हैं लेकिन खुद को भी नंबर मिलता है और टीम को भी मिलता है। तो वो लीडरशिप स्किल्स कंप्लीटली अलग रहता है, उसमें KPIs रहता है, कैसे मोटिवेट करना है, वो सब रहता है। बट आई वाज एट माय वर्स्ट नाइटमेयर। तो जब भी आप CEO है और आपको अगर टीम से नंबर निकालना है, तो उसमें क्या, अगर आप CEO है और आप अच्छे हैं सेल्स में, सम CEOs आर वेरी गुड एट सेलिंग, राइट? और आपसे अच्छा तो कोई बेचेगा भी नहीं, बिकॉज आपका पैशन है, आपने जो धंधा चालू किया है वो आपने चालू किया, आपका तो पैशन है, तो आपके से अच्छा तो कोई भी नहीं बेच पाएगा। लेकिन जब वो सिस्टम है ना, वो दैट्स द वर्स्ट फेलियर, बिकॉज उसमें आप कभी भी 3 month हॉलीडे नहीं ले पाएंगे। आप जब कब ले पाएंगे, जब आपका टीम आपसे भी अच्छा या आपके जैसे सेल कर पाए। दैट्स द टाइम व्हेन आपका प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट होना है। So as a sales, as a CEO and as a business, you have to know how to leverage. And that's why we say time is more valuable than money.
अगर आपके बगैर आप कैसे ट्रेनिंग करके, कैसे लेवरेज करके टीम के पास से काम निकाल पाए और उसको भी मोटिवेट करके, उसका भी स्ट्रेस करके उसका सक्सेस इंप्रूव कर पाए, दैट्स एवरीथिंग, दैट्स द गेम चेंजर. हु अग्रीज विद मी? So as a business owner, that's what you need to be thinking on the lines of. Don't think small, you've got to think big, right? So most people don't have the right sales skills. Even when they get promoted as sales leader, or even if we are business owners, we don't have the skills that we need. But agar professionally thoda sa training companies karti hai, the big companies, they do sales training. Abhi Samsung mein honestly ho raha tha, company was doing sales training for us. तो हम लोग जा रहे थे वो सब मिले, और जब जाके आते थे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता था, बिकॉज अ फ्यू थिंग्स यू ऑलरेडी नो. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नई चीज बोल रही हूँ, लेकिन जो पीछे हो जाता है ना, वो टॉप ऑफ द माइंड नहीं रहता है, वो बैक ऑफ द माइंड हो जाता है. तो जब से थोड़ा सा रिफ्रेशर ट्रेनिंग हो जाता है, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी कोचिंग हो जाता है, तो रिफ्रेश हो जाता है चीज. सो 9% फास्टर हम लोग का सेल्स चालू हो जाता है. ये हार्वर्ड का स्टैटिस्टिक्स है. And 61% of executives say that their sales managers are not trained. जो नया एम्प्लॉई ज्वाइन करता है ना कंपनी में, वो अपना मैनेजर के पास से सीखने का कोशिश करेगा, लेकिन 61% बोलते हैं कि उसका मैनेजर के पास करेक्ट स्किल्स नहीं है. आई एम श्योर मेरा भी जो एम्प्लॉई लोग रहेंगे, उन लोग ने भी यही बोला होगा कि उसका मैनेजर टोटली यूजलेस है. So, but of course now we learned, and फिर experience पे सीख सकते हैं, लेकिन experience is expensive. सब experience के लिए सीख सके तो मुझे तो दूसरा 20 साल लगेगा, लेकिन किसके पास है 20 साल, correct? तो कैसे हम fast track कर सकते हैं? So grow your people and see what happens. They will grow your company. So ये training, ये एक joke भी है, you know, CEO और CFO के बीच में. वो CEO बोलता है यार हम लोग को अपने आदमी लोग को train करना चाहिए. I'm sure you guys have heard this. और वो CFO बोलेगा पागल है क्या, उसको ट्रेन करेगा और फिर वो छोड़ के चला जाएगा तो क्या करेंगे? तो वो CEO बोलेगा कि क्या, you heard this joke right everyone? CEO बोलेगा अगर हम लोग उसको ट्रेन नहीं करेंगे और वो रहेगा कंपनी में तो क्या करेंगे? तो वो 10 महीने के लिए विदाउट ट्रेनिंग बैठेगा, हमारा मंथली फिक्स सैलरी लेगा, तो क्या करेंगे? करेक्ट? तो मैं तो वो ऐसे भी बोलती हूँ, हायर गुड पीपल. एक्सपेंसिव रहेंगे, लेकिन आपको इतना पिंच होगा वो उसका पगार देने को कि आप उसके पास से डेफिनेटली रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन निकालेंगे. सो सेल्स स्किल्स इज लाइक साइकिलिंग. वो कुछ पढ़ के या वीडियो देख के या कुछ ऐसे करके नहीं सीख सकते आदमी, उसको आप एक्टिवली करके ही सीख सकते हैं. तो जब मैं दुबई में नया नया आई थी, तब मैं पूरा बुक्स सब कुछ वीडियो सब कुछ पढ़ती थी. वो यू नो सबका सेल्स का सब कुछ पढ़ रही थी, और मैं पूरा यू नो वो छाप के जाती थी, और अभी ये मीटिंग में ये सब पूछूंगी. बट व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर द मीटिंग में, इतना वो नर्वस हो जाती थी कि अंदर जाके सब भूल जाती थी. लिटरली आई वुड कम बैक कि यार मैंने तो ये भी नहीं पूछा, वो भी नहीं पूछा, ये सब पूछने का था, नहीं पूछा, राइट? एंड वो इतना CEO के साथ मीटिंग इतना ठंडा हो जाता है हम लोग कि कुछ नहीं कर पाते हैं. सो हम क्या आपको रेकमेंड करेंगे कि ये जो सेल्स प्रोसेस है उसको आपके टीम के बीच में एक दूसरे के साथ आपके टीम को प्रैक्टिस कराओ. आपको ऑलरेडी पता है कि कस्टमर क्या बोलने वाला है, आपको पता है कि वो बोलने वाला कि महंगा है, सबको प्राइस अपना महंगा ही लगता है, राइट? तो आप क्या बोलेंगे? पहले से स्क्रिप्ट बना दो ना. आपको ऑलरेडी पता है कि वो बोलेगा मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं बिजी है, मैं सोच रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ में देखेगा, नेक्स्ट साल में देखेगा, नेक्स्ट व्हाटएवर में देखेगा, राइट? नॉट नाउ, लेटर. ये तो यू नो पूछते हैं. तो आप क्या बोलेंगे उसमें? आपका टीम क्या बोलेगा? ये पूरा स्क्रिप्ट करके रख के जाओ. तो यू हैव टू प्रैक्टिस एज अ एक आदमी को आपके टीम में एक क्लाइंट बना दो. अगर जो सोलोप्रेन्योर है, आपकी बीवी को या आपके हस्बैंड को क्लाइंट बना दो और आप सेल्स पर्सन बन जाओ. इफ यू इवन सी मूवीज, यू नो, जिसमें जो सेल्स की जो मूवीज है, यू नो, ये जो लियोनार्डो का एंड सबका जो सेल्स का जो मीटिंग, अपना रॉकेट सेल्समैन भी था इंडिया का मूवी, राइट? वो मेनी टाइम्स दे विल बी टॉकिंग लाउडली इन द कार, कि बाथरूम में मिरर के बीच में बात करेंगे एंड ऑल दैट, यू नो. तो वो जोर से बोल के और प्रैक्टिस करके
जो अंदर अपना सबकॉन्शियस में जो बैठ जाता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल प्लेयर्स, वो लोग ऐसे ही थोड़ी एक ही किक वो लोग 10,000 टाइम्स ट्राई करते हैं, राइट? ब्रूसली सेइंग मुझे एक ही किक 10,000 टाइम जिसने ट्राई कर दिया है उससे ज्यादा डर है। आई डोंट वांट समवन हु हैज लर्न 10,000 किक्स, लेकिन एक ही उसने जो 10,000 बार जिसने ट्राई किया उसके साथ मुझे ज्यादा डर है, राइट? तो इट्स अबाउट प्रैक्टिस। तो हम ये पूरा जो कस्टमर के सामने जाके जो होना है हम पहले से क्यों नहीं प्रैक्टिस कर सकते? एंड दैट्स इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर आपने खाली ये पॉइंट ले लिया ना, नाउ दिस इज इन पॉइंट 2, ये जो सेल्स प्रोसेस का जो पॉइंट आना, एक एक स्टेप में जो करना है, जो बोलना है, वो सब स्क्रिप्ट लिखा होना चाहिए, वो आपने एटलीस्ट 10 टाइम्स रीड किया है और किसी और को एटलीस्ट 5 टाइम्स बोला है। दैट इफ यू डू, नोबडी विल डिफीट यू। आप क्लोज, आपका 10 में से 1 जो क्लोज हो रहा है ना, वो इजिली आपका 10 में से 4 क्लोज होगा, अगर खाली इतना किया तो। ठीक है, सो दिस इज डिजाइन योर सेल्स फोर्स। दिस वाज द थर्ड स्टेप, डिजाइन योर सेल्स फोर्स। आपको क्या स्किल्स चाहिए, क्या है, कैसे लोग को आपको रिक्रूट करना है, क्या आप टारगेट डालेंगे उनके लिए, कैसे आप कमीशन प्लानिंग करेंगे, और हाउ यू कैन ट्रेन देम, और CRM लाना इज इम्पोर्टेंट। So these are the 3 steps. कौन है 3 steps? कौन बोल सकता है मुझे चैट में? What was the first step? Who can write in the chat? क्या है 3 step? ये तीसरा step है, about your team. What was the first step? Nobody knows. Number. हाँ, आपका sales number जो आपको annually revenue क्या चाहिए अपनी कंपनी में, वो आपको लाना है, right? Number. Second step क्या था? जो प्रोसेस, जो सेल्स का प्रोसेस जो रहता है, वो पूरा जो स्टेप्स रहता है, वो एक स्टेप उसके पहले, दूसरे स्टेप के पहले फर्स्ट स्टेप नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे फ्लो में जाएंगे तो ही आपका चांसेस ऑफ क्लोजिंग बिकम्स मोर। एंड थर्ड स्टेप इज सेल्स टीम मैनेजमेंट। कैसे आप टारगेट सेट कर सकते हैं, किसको आप ला सकते हैं, और कैसे आप उसको reach out कर सकते हैं। So these were the 3 steps and I hope this was very very valuable. Just remember कि जो आप एक बार सेल करना सीखते हैं ना, वो आप बेटर ही होते जाएंगे। जितना आप पहली बार आपका क्लोज हो जाएगा डील, लेकिन मे बी मेहनत से हुआ कि बहुत सारा गाली सुन के हुआ कि जो भी हुआ, लेकिन सेकंड टाइम आप उससे बेटर ही करेंगे, और 5th टाइम आप इतना फ्लॉलेसली करेंगे कि आप फिर सीनियर लोग को ही जाना। तो सेल्स में जो आपने इन्वेस्ट कर दिया ना सीखना, तो आप लाइफ के लिए है आपके। इनफैक्ट एक घर में फैमिली के साथ भी काम करता है। बच्चे लोग को कैसे आप बेच सकते हैं कि भाई जल्दी सो जा, या ये सब अनहेल्दी मत खा, एंड हस्बैंड के साथ भी मुझे तो काम में आता है, हाउ टू कन्विंस हिम टू डू थिंग्स दैट आई वांट टू गो, एंड ये नेगोशिएशन स्किल्स, ये पार्टनरशिप है, वो सब में आपको सेल्स स्किल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, हु अग्रीज विद मी? Say sales rock star. You guys are sales rock stars. So I invite you all, please make sure you do your sales strategy and don't take sales for granted. अगर धंधा चालू किया है या एम्प्लॉई है कि सोलोप्रेन्योर है, सेल्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। वर्क ऑन सेल्स, तो ही आपका कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होगा। इतने लोग ऑपरेशंस में बिजी हो जाते हैं कि सोचते ही नहीं कि भाई ये डील खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास कुछ भी काम करने के नहीं है। सो कंसिस्टेंटली डेडिकेटेड अगर रिसोर्स है कि सेल्स पे काम कर ही रहा है, फिर आप इन्वॉल्व हो उसमें, वांदा नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट बी द पर्सन ड्राइविंग अलोन द सेल्स, बिकॉज यू विल गेट बिजी विद अदर थिंग्स और आपका ये इफेक्ट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट एंड दैट्स मी। So you can reach out to us, and my email is 10xsales@rooftopsales.com. You can just check our website, और ये हमारा WhatsApp का number है. I'll try and give it to you on the chat as well. So I'm open for questions, and I hope that was a lot of value. हाँ, जिनको सवाल पूछना है प्लीज डायरेक्टली पूछ सकते हैं आप। Very nice presentation, Alithia.
I really enjoyed myself. Number, ma'am, please. I loved your Hindi. You love my Hindi? I used to get better marks in Marathi. So Alethea, there is someone who asked how to create prospects. So if you can answer that question. Very, very good question, because prospecting is the most important. So it's the best question you've asked. Who's this person? I want to know. Who asked? Give me your name. Well, very good question. So very good question. So prospecting is the most important. And इसका आप इसमें invest करके marketing करके भी लेना important है. Now I'll tell you, थोड़ा सा depends on your product कि आपका कौन सा industry है, आपका कौन सा. If you can tell me, the person who asked this question, कि आपका कौन सा industry है, कि कौन सा product या service आप है. So that was Vishal based. So Vishal, you can please unmute yourself and speak to Alethea directly. Yeah, Vishal, I saw you. Hi, Vishal based this side from Noida, India. Actually, I am in IT services as well as my EdTech platform. So actually, you can say that my prospect client are for the working professionals as well as startups and SMEs. Okay, so I got it. And I'm going to keep this little general so the rest of the audience can also benefit from the answer. But I got your point. I'm going to come more specific to yours as well. Now, prospecting, depending on the product and service और आपका जो market है, उसके हिसाब से होता है. Most people do direct selling. हम ancient time से, बचपन से हम लोग ने हमेशा direct selling ही किया है. हम customer को जाके बात करते हैं और one to one ही sell करते हैं. Now, आज की तारीख में one to one is no more the most sensible and the most profitable way of operating. आज की तारीख में you have to find leverage of time. Okay, तो क्या होता है, partnerships होता है, collaborations रहता है. Okay, but social media and digital is something which has become very important. तो lead generation कभी-कभी रहता है जो आप paid marketing करके, अगर आपको एक ad से 50 रुपीस या 100 रुपीस में मिल रहा है और आपका अगर आपने 1000 रुपीस भी डाल दिया और लेकिन आपको अगर खाली एक या दो क्लोज हो गया डील और उसमें आपको 10,000 रुपीस मिल गया, तो आप कितने टाइम 1000 रुपीस डालेंगे? Tell me, right? So it's called the conversion cost for acquisition, कि आपको एक कस्टमर लाने के लिए कितना कॉस्ट लगता है. But guess what? अगर आपने 1000 रुपीस डाल के 100 prospects निकाल दिया और आपका एक क्लोज हो गया 10,000 में, तो वो 99 जो नहीं क्लोज हुआ है उसको अगर आपने नर्चर करना ही रखा, कंटिन्यू रखा नर्चर करना, तो विद इन 6 months या 1 year या whatever, जब भी तो उसमें से 3-4 तो और कन्वर्ट हो ही जाएंगे. डू यू अग्री विद मी? अगर आपने सिंपल ईमेल स्ट्रैटेजी रखा या एजुकेशन करना चालू रखा, that's important. Okay, so digital and online has become extremely powerful. Aaj ki people are doing webinars, people are selling one to many. That's the key word. Direct selling is one to one, but can you think कि आपके business में कैसे you can sell one to many? Okay, and third technology है, जो third technique है prospecting का, is distribution channels. जब जिसके product में ये affiliate जो रहता है या कोई और आपका बेच ले और आपने वो joint venture में बना दिया या whatever. So कोई और कैसे आपका बेच सकते हैं? So distribution channel जो रहता है, for example products जो रहता है, उसका पार्टनरशिप एक इंडिया में बना दिया, एक दुबई में बना दिया, एक मलेशिया में बना दिया, एक लंदन में बना दिया, और ऐसे करके लेवरेज मींस फ्रेंचाइज यार. तो यू हैव टू थिंक स्मार्ट. अभी आप अपने ही हाथ पैर पे नहीं डिपेंड करें, आप कुछ ना कुछ करके लेवरेज टाइम करना सोचो. कि सेल्स टीम भी जब आ जाता है ना, वो भी टाइम लेवरेज हो जाता है. मतलब 3-4 लोग आगे जा रहे हैं और so other than that the standard ways are all the standard ways जो lead generation का रहता है. लेकिन ये one to many, and this is where you want to think. So Vishal, for yours, being an edutech, I'm sure you're using the online modality, e-commerce है कि these are the various ways of doing it, and hire agencies to do the prospecting, because जो starting का जो funnel रहता है वो बहुत ज्यादा,
ऑनेस्टली ये जो 1 to many करते हैं ना, उसमें वॉल्यूम बहुत होता है, क्वालिटी बहुत कम रहता है. So one thing what you can do is foot in the door के लिए बहुत सस्ता कुछ दे दो. So let them experience it. So you know Samsung में हम लोगों का एक था, जब मैं एक डील कर रही थी जो मॉल में, दुबई मॉल जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा मॉल था, राइट. So हम लोग उसमें LG के साथ बहुत कटथ्रोट कंपटीशन चल रहा था. ओके, तो LG क्या है ना, वो मार्केटिंग बजट बहुत लेके आ जाता है कभी भी, तो यू नो मार्केटिंग बजट लेके प्राइस कम कर देता है एंड ऑल दैट स्टफ. और हम लोग को सैमसंग में अलाउड नहीं था मार्केटिंग बजट. वो बोलते थे तूने डील बाय कर दिया, तुम लोग अच्छे सेल्स पीपल नहीं है एंड यू नो व्हाटएवर लाइक दैट, यू नो. तो सैमसंग में वी वर नॉट अलाउड टू यूज मार्केटिंग बजट. तो हम लोग कैसे, यू नो, कट थ्रोट, वैसे भी LG इज चीपर, तो हम लोग करेंगे क्या. सो व्हेन वी वर टॉकिंग मार्केटिंग विद देम, एक टाइम वो मार्केट उन लोग को भी चाहिए कि भाई सैमसंग आ जाए, यू नो, मॉल में. तो दे वर लाइक मुझे सब जगह पे तुम लोग का टीवी लगा देंगे, तुम लोग का ब्रांडिंग डाल देंगे सैमसंग सैमसंग करके. तो हम लोग के मार्केटिंग ने बोला हम लोग को नहीं चाहिए सैमसंग नाम कहीं पे भी, इट्स नो वैल्यू टू अस. सैमसंग इज ऑलरेडी अ ब्रांड, हम लोग को नाम दिखा के कुछ भी फायदा नहीं है, नहीं चाहिए. So I said, you know what? So Samsung was number 7 in the global brands in the world, okay, and they wanted to come to number 5. ये मार्केटिंग लोग का जो KPI रहता है ना, टारगेट, हम लोग से भी बहुत ज्यादा रहता है. Like they are like literally shitting bricks every day, literally, you know. तो क्या किया कि उसने बोला मुझे एक्सपीरियंस करवाना है कस्टमर को. उसको बोल हम लोग को कुछ भी जगह दे दे जिसमें हम लोग एक स्टैंड बना दे, जिसमें हम लोग मोबाइल दे दे, मॉनिटर्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे. लेट द पीपल यूज इट एंड सी इट, प्ले विद इट. वो गेमिंग, वो VR ग्लासेस आ रहा था एंड ऑल दैट. ही सेइंग जस्ट टेक अ प्लेस where people can come and use my technology. So experiential. So जब भी आप 1 to many बेच रहे हैं ना, तो try to get them to experience what you're giving. So जब आपको वो, आप like for example आप लोग ने आज मुझे experience कर लिया like 1 घंटा जो भी है, तो now you are already bonded much more कि मैं 1 to 1 इतना नहीं कर पाऊंगी, right? How many people would I need? लेकिन now you guys have got an experience. So do a free session या जो भी है, something like that. That's the best way of doing it. या samples जो रहता है, trial दे देते हैं कि एक 15 दिन के लिए try कर लो and all that stuff, you know. So ये जो टेक्निक है, जब आपने एक्सपीरियंस कर लिया फिर आपके साथ वो रह जाएगा, like dating rather than marriage. Yeah. Thank you, Alifia. Thank you. Thanks a lot. Alifia, do you have any suggestions for professional services? Like I'm a chartered accountant and I have a finance, consulting, audit consulting. So how do you market? So for prospecting again, for audit consulting and financial consulting. Yeah, prospecting. Basically prospecting. How do you reach out to people? To new people. How do you close? I mean, it becomes too much of this thing. From the assurance point of view, controls, processes, I'm strong. Operations, you give me the craziest investigation I can do, I can prove, I can give assurance. But getting clients, I mean. I know what you're talking. So I have a lot of accountants that I support. So Kamal, just for the background, I'll tell you, most of entrepreneurs are technical geeks. If you read this book, E-Myth करके एक book है जो बोलता है कि आप, वो एक बेकरी का स्टोरी देती है कि वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहते हैं जो धंधा चालू कर देते हैं कि भाई मैं सबसे ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन देन दे डोंट नो कि क्लाइंट कैसे ऑनबोर्ड करें, राइट? दैट इज एग्जैक्टली जो आपका इशू भी है, राइट? तो उसमें क्या है ना, you have to get hands, Kamal. That's the best because technically आपसे ज्यादा better कोई नहीं close कर पाएगा, लेकिन open doors के लिए जो है ना, वो आप outsource भी कर सकते हैं एजेंसीज में. मैं तो intern strategy left right center यूज कर रही हूँ सबके साथ. आज इतने सारे बच्चे लोग हैं, so talented. Take a commerce graduate or whatever, get him to and mentor him, train him. They are just opening doors. मतलब आपने फिर अगर social media में भी जो 80-90 आ गया, all my clients, I'm getting them interns. These kids are so talented, so brave, ready to mold. गाली सुनने के लिए भी बेचारे लोग तैयार हैं. So best strategy is, and as entrepreneurs, I must tell you one thing. It's our job to create employment.
It's our moral responsibility to create employment. Okay, so this is something extremely important. So if we can manage people, and how can you create employment is when you are increasing your revenue. कि आपके लिए भी है और दूसरे के लिए भी है. So how can you leverage time? तो ये अगर आप फ्रेशर्स बच्चे लोग को भी लाएंगे, उसके पास उसको ट्रेनिंग के लिए इन्वेस्ट कर दो आप, और उसको स्क्रिप्ट्स बना के होता है सबका जो स्क्रिप्ट्स एंड ऑल दैट, भाई ये फोन पे ऐसे बोलना है, कि इसमें ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, whatever. Invest on their training. It will be a long-term strategy for you. And then वो जब दरवाजा खोल दे, फिर आप 10 मिनट का Zoom कॉल कर दो, आपको तो कन्वर्ट ही है. Get you. Yeah. But that's the basic thing. Interns and LinkedIn. That's it. Nothing else. You can do Facebook also. You can do lead generation. So it's important to look at the problems that you're solving. And sales is not about talking. Sales is about listening. Okay. The problem is हम बोलते हैं क्या करते हैं हम लोग, चालू कर देते हैं भाई ये मैं इतना ये अवार्ड ले लिया, वो कंपनी कर दिया, वो कस्टमर कर दिया, ये इसको कर दिया. Sales is not about talking. Sales is about आपका किधर प्रॉब्लम है, आपका किधर लॉस है, कैसे आप कर रहे हो, क्यों ऐसे, you know. So if you can show value, that's the strongest rapport you will build with a friend, with a company. कि अगर आपने उसको कुछ, so there are 3 levels of rapport building. So एक बार ये बच्चे ने आपको जब दरवाजा खोल दिया, then how you're selling, that's what you're coming to now, right? So one is when he needs something and I have that, तो want है, उसके पास कुछ, उसको कुछ want है और मेरे पास वो product है और मैंने दे दिया. So that's first level of rapport building, which is the weakest. कि भाई चलो तुम लोग को आईफोन चाहिए, 3 लोग के पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, तो किसके पास, ठीक है. That's just like, that's the most shallow level. हम लोग इतना ही करते हैं. Second level is when he has a need and मेरे पास वो product है और मैंने उसके साथ friendship बनाया. मतलब I got, maybe हम लोग golf खेलते हैं, कि हम लोग के बच्चे लोग same age के हैं, कि वो same school से आया है, वो same country से है, कि जो भी है, somewhere where we find commonalities, कि उसका जो job में experiences है, उसका जो pain है, मुझे भी pain है, you know, somewhere some different level of collab कुछ बनता है जो वो बन सकता है वो जो. So that is the second level. That's what I said. अगर 3 लोग के पास iPhone है और मुझे iPhone चाहिए, जो मेरे साथ अच्छा बात किया, जो मेरे साथ ज्यादा relation बनाया, उसके पास से मैं खरीदेगा. Now what's the third and the highest level? Third and the highest level is the aha moment. कि आपने उसको पर्सपेक्टिव बदल दिया, मतलब आपने उसको इतना एजुकेट किया कि उसका पूरा टर्न अराउंड हो गया स्ट्रेटेजी, कि आपने उसको आपका टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ आपने उसको कितना वैल्यू ऐड कर दिया उसकी लाइफ में. फिर वो आपका, like, you know, if you see some of these global personalities, they have people working for them for free, like Toastmasters, BNI, जो भी लोग फ्री में सब लोग कर रहे हैं कुछ, तो पैसे दे के भी लोग उसका सर्विस कर रहे हैं, like, you know. So that level is when you change and transform, and that comes with a very deep intention to help people. So जब आप उसने वो वैल्यू ऐड कर दिया ना, तो वो आपके पास से लाइफ तक चेंज नहीं करेगा. So that's the level of rapport we want from our customers. I hope I answered your question. Awesome answer. Thanks. Olivia, this is Rajesh Shukla. Can I ask you a question? Yeah, sure. Yeah, the question here is, being a startup, we always have a question whether it is more important to build the brand or to give more importance on the sales systems. So what would you answer to this? So brand is not what you think you are. Brand is what the customer thinks you are. Okay, that's the most important thing. So when you are brand new, so what do you mean by build the brand? Matlab your collaterals and your logos and all that, is that what you're talking about? Those are collaterals. Collateral is completely different. When we talk about a branding budget, it means your promotion budget for your whatever name, you know, your company name and everything. And a sales system is completely different. A sales system and a branding system is completely different. But many a times in the market, it is said that you build a brand and the sales will come to you. So I'll tell you, the best branding happens when you get testimonials. In my opinion, it's what you're trying to create
So there's this one strategy, which was in one of the books I have read, is 1, 2, 3, 4. So do the first one for free, you know, for the sake of getting a testimonial. So you've tried it because it's, you know, आज के time में बोलते हैं design thinking और बोलते हैं proof of concept, जो भी आप अलग-अलग जो बोलते हैं, right? So that can be, so the first one, do it for free if you have to, just to get the testimony and get the proof that by जो भी आप दे रहे हैं वो चल रहा है. Okay, so if you can tell me what are you into? We are actually into food product. We're into shelf life technology for food. Fantastic. So technology product for food. Okay, industry. So the first one you can even do for free. So obviously when you talk free, for me, one mandate is you can't bleed. Like cost आप नहीं free में दे सकते. Like cost you've got to, like for example आपने material खरीदा तो cost तो आप नहीं दे सकते. So otherwise you can do it at cost. मतलब आपने margin नहीं लिया लेकिन cost दे दिया. So one, you can do it like that. Second one, you do it at 50% of your profit margin. Third one, you can do it like, you know, I think the first one was still free, even if you have to pay for the product. The second one, you do it at cost. The third one, you do 50% of your margin. And the fourth one, you do it at full price. And that's how it works, because you want proof of concept and you want credentials. And again, what sort of company are you doing it for is extremely important. You don't do it for like any food, you know, you do it for the one you want as your target avatar. So if I'm like, for me, sometimes I like Fortune 500 companies because that's the background, right? I would go and tell, for example, I'm also into technology. So I can go and tell HP boss, I'm going to do it for you for free. That sort of a thing. So you want testimonies and you want this thing, but I would always say create the brand as well. But you cannot just redo it, but some part of it you can do on the way. But sales is always the most important focus, and sales will only come from proof of concept. So if you have proof of concept and customer testimonies, your future sales will come, and you also get that confidence on what value you're bringing to the table. So the best branding you can do is get customer testimonials in video and audio. So as a business owner, you would suggest that it is better to invest in sales systems than the branding systems to begin with for a startup? I would say 50-50, but I would say sales doesn't come second for sure. Sales does not come second. You've got to get proof of concept. You've got to get proof, you know, so you have to do a little bit of branding and all that stuff, but sales cannot come second. It's the first thing you want to do. Thank you so much. One question that we've received, Alifia, is in the current situation, people don't have a lot of money to invest in marketing or sales. So how do we tackle that? There's always a chicken and egg story, but if you can't do marketing, you'll never do sales. So you might as well shut down or whatever. What do you mean by that? Why would If you you can't do marketing, you cannot do sales. So where are you What do putting you your mean? money? Are you putting your money on production for what? If you what are you producing for if you don't have a customer? So I mean, the problem is, you know, humlo company, like I've seen a few startups because we do consulting for the Dubai startup ecosystem a little bit, because you know the entrepreneurs and all, they give big plans, government से पैसे ले लेते हैं और फिर उन लोग का revenue का कुछ है ही नहीं औकात, लेकिन सब cost में use कर दिया investment जो मिल जाता है और sales effort में कुछ भी नहीं use करते हैं. Like they keep on creating product पे product investment करते रहते हैं, लेकिन वो revenue strategy भूल जाते हैं करना. क्यों भूल जाते हैं? Because उन लोग का comfort zone नहीं है. Technology बनाना उन लोग का comfort zone है, लेकिन वो revenue strategy करना, उसमें गाली सुनना पड़ता है, ये सुनना पड़ता है. But that's the problem. I feel that you think you want to do everything alone. That's the first problem. You should not want to do everything alone. So intern strategy hai ki, you know, commission only strategy hai, jo bhi to hai, lekin don't ignore this pillar. So it's extremely important that you don't ignore this pillar. So can you repeat that question? That was people don't have money for marketing, right? So marketing is today very, very affordable. But like I said, marketing is about the cost of customer acquisition. Marketing is not marketing. It's the cost of customer acquisition. How much is it costing you to do that branding or that PR or that marketing? If that 10 or 100 rupees or 1,000 rupees is getting you a customer of 10,000 rupees,
How many times will you give that 1,000 rupees is the question. Now you can cut corners and go to some cheap agency, but guess what? It's just going to cost you much more. So you can do it on your own and stuff. लेकिन ये branding और marketing थोड़ा सा बराबर कर दिया है और उसके बाद आपका conversion fast हो जाएगा. और कब तक conversion नहीं होगा तो फिर क्यों बनाना है? जो भी आप पैसे जिसमें सेव करके डाल रहे हैं क्यों करना है? छोड़ दो ना फिर. बेचना ही नहीं है तो क्यों करना है? कहाँ से आएगा पैसा? अभी पापा तो गए ना. Thank you so much, Alicia. Great answer. What's the nexus between branding and marketing? Well, honestly, branding is something that you honestly cannot do. Branding is what the customer thinks you are. So you have very little control on branding as such. Like for example, मैं Costa बोलूंगी तो आपके दिमाग में क्या आता है? Coffee आता है ना? So that's the consistency जो रहता है आपका approach में. That is branding. अभी एक दिन आपने blue use कर लिया, एक दिन red use कर लिया, एक दिन अलग use कर लिया, फिर it doesn't look, you know. तो अगर आपने branding आपका customer quality में भी आ सकता है, आपका service levels में भी आपका branding बन सकता है. अगर मैं आपको मैकडॉनल्ड बोलूंगी तो आपके दिमाग में आएगा फास्ट क्विक. और अगर मैं आपको दैट्स द ब्रांडिंग ऑफ मैकडॉनल्ड कि मैं क्या सोचती हूँ. तो आपका ब्रांडिंग आपके ऊपर कंट्रोल है ही नहीं. व्हाट आई थिंक ऑफ यू, दैट्स व्हाई वी से ड्रेस फॉर द जॉब. ड्रेस ऐसे क्या है यार? आई मीन आपका आधा परसेप्शन तो आप कैसे शो अप हुए उसमें हो गया. कि आप टाइम पे आए नहीं आया वो आपका ब्रांड हो गया. आप लेट आए आपका ब्रांड हो गया. यू आर हर्टिंग योर ब्रांड. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज यू. व्हाट्स योर वैल्यू सिस्टम. तो यू हैव नो कंट्रोल ऑन योर ब्रांड. इट्स योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स इज व्हाट विल क्रिएट जो आपका ब्रांड बनेगा. वो कस्टमर डिसाइड करेगा जो आपका. वो ये गलती हो जाता है लोगों को. दे थिंक मैं ब्रोशर बना दिया, वेबसाइट बना दिया, ब्रांडिंग हो गया. लेकिन कंसिस्टेंसी और सेम कलर्स थोड़ा रहता है, सेम लोगोज रहता है, थोड़ा सा वो लुक एंड फील. वो सलमान खान का मैं खाली हाथ देख लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा वो ब्रेसलेट से कि वो सलमान खान है. वो उसका ब्रांड है. उसने कुछ बनाया नहीं उसमें. वो उसका ब्रांड है कि भाई ये हाथ देख लिया तो हमको पता चल गया कि वो सलमान खान है. So marketing will lead to branding. Marketing also leads to, because it's that consistency. That will तो immediately आज के आज नहीं आ जाएगा, लेकिन आपको 3 महीने में 6 महीने में. But the highest return on investment is having a business. Okay, आपको जो leverage जो रहता है ना, जो आपका पैसे का जो worth रहता है ना. For example, हम बोलते हैं कि employee है तो हमको जो टाइम डालेंगे कंपनी में तो उतना ही हमको पैसे मिलेगा. Correct? Everyone with me here? Yes. अभी हमने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में कि कुछ भी फाइनेंशियल एसेट में जो भी कर दिया. अभी वो जो आएगा वो आएगा. यू नो, उसमें आपके पास कंट्रोल है नहीं. वो क्या देते हैं 10%, 20% कितना देते हैं, राइट? लेकिन आपने वही 100,000 या 1 लाख जो भी अगर आपने खुद कंपनी चालू करने में, लेकिन लोग क्या करते हैं वो सोलोप्रेन्योर बन जाते हैं. वही यू स्टिल वर्किंग फॉर दैट सेम थिंग. लेकिन आप अगर लेवरेज करके बराबर से सिस्टम लगा के अगर आपने बराबर से गो टू मार्केट का प्लान बना दिया, बिजनेस इनकम, बिजनेस पे आप 70% to 100% का प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं. आपने अगर 10,000 भी लगा दिया वो 20,000 आना ही है. कर सकते हैं आप. 10,000 का 20,000 नहीं बना सकते बिजनेस में. सोलोप्रेन्योर्स भी बना देंगे. क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग? कुछ भी नहीं. बिजनेस इज द हाईएस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो आप रॉबर्ट कियोसाकी का अगर रिच डैड पुअर डैड किसी ने पढ़ा है, वापस पढ़ो एक बार. बिजनेस इज द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इवन मोर देन. और वो बिजनेस को अगर आपने सिस्टम लगा के बराबर से लगा के ऑटो पायलट में बना दिया तो आपका वो पैसिव इनकम बन गया. तो आप 3 महीने का हॉलिडे का टारगेट बना दो. 2021 में सब लोग को खाली सितंबर तक काम करना है. अभी लास्ट 3 months इज हॉलिडे सबका. सो टारगेट दैट. और सिस्टम कैसे चलेगा कि आपको एक फोन नहीं आए लेकिन फिर भी आप वापस आए तो आपके बैंक अकाउंट में आप जितना पैसे छोड़ के गए थे उससे ज्यादा है. सिंपल. So Alafia ma'am, I have a question regarding to the previous one, जो कि अगर पैसा नहीं है या फिर कम पैसा है तो मार्केटिंग में कैसे मैनेज करें. So I am trying to be a little bit more specific about it.
there are two domains that are being targeted by a lot of people. मेरे friends भी है जो target कर रहे हैं. एक है email marketing and second है social media पे paid ads चलाना. So what gives the best results? Because ये दो domain बहुत hit कर रहे हैं लोग. आज इंडिया में trend चल रहा है अभी 2-3 महीने से कि ये बहुत hit कर रहे हैं. तो return कहाँ से ज़्यादा आएगा? What is more specific? Because anyways funds बहुत limited है. So they want to target the place where they will get returns. What do you say? Very nice question, Akshay. Very, very good question. Okay. Email marketing is extremely powerful. Social media paid marketing is also more powerful than cold calls. तो हमारे ज़माने में हम लोग old time में क्या करते हैं? I would say हमारा, because even I'm not so, I also started with cold calls, right? तो मैंने भी तो cold call से ही चालू किया. तो हमारे ज़माने में हम जब cold call करते थे, hello, यार मैंने कभी पूछा कुछ, गाली देने का मन, and everybody is irritated. हम लोग खुद को भी cold call आता है तो हम कितना frustrate हो जाते हैं, right? The difference is the 360 degree का पूरा उल्टा असर है पेड मार्केटिंग पे. आपने पोस्ट डाला, उसने क्लिक किया, उसने बोला आ बेल मुझे मार, अभी उसको फोन करना है. How powerful. Would you want to wake up every morning and call someone who's not expecting your call? कि उसको यार ठीक है आपने फ्रेंड्स था 5 साल पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, लेकिन उसको नहीं खरीदना है यार, आपको जो भी देना है. क्यों आप उसको इरिटेट नहीं करना है ना उसको? उसने बोला मुझे फोन कर, इसके लिए नहीं बोला ना. So would you want to wake up every morning and call people who are not expecting your call, or would you rather call people who have clicked on something you have shown and shown interest in whatever you have shown, और फिर उसने आके मुझे बोला है कि भाई अभी मुझे डाल. Okay, so first step is paid marketing, but the conversion is some 300+% higher if you call them within the first 10 minutes or within the first 2 hours or within the first 1 hour. अगर आपने उसको 3 दिन के बाद फोन किया, उसको याद भी नहीं होगा किस पे क्लिक किया. Are you with me? Because this is a cold audience. It's a very, very cold audience. मुझे अगर कहीं से डेटाबेस भी मिलता है ना, मैं उसको पहले एक एड पोस्ट करूंगी कि भाई ये लोग को सबको ये पहुंचा है, उसको इसमें से बोलने दे कि मुझे पता है कि उसको इंटरेस्ट है या whatever, but instead of directly calling them, I'd rather run an ad to them and then let them click. Now they have invited me and given me permission to call them. Right. So it's a very powerful thing. Let's call them immediately. Now don't call them after 24 hours. Right. As much as the sooner you call, the rate of conversion is much higher. Okay, that's step 1. Now people will click on many things, but will you click on Bitcoin if you're not interested in? Are you going to click on food and biryani recipes or something if you're not into cooking? You will only click on things that is somewhere in your interest zone or in your whatever, right? मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट है जो दिखा था, अभी आपने क्लिक कर दिया, लेकिन आपको खरीदना नहीं है, आपको बाय नहीं करना, आपने खाली ऐसे ही क्लिक कर दिया था, whatever, right? So, but somewhere in your interest you have that. Now your job is to nurture. How do you nurture? Email marketing. अभी उसको भूल नहीं जाओ, उसने नहीं खरीदा, ठीक है. अभी आप लोग जो इधर है ये रूम में, means somewhere you guys are interested in selling. Means you are my potential prospect this thing, right? नहीं तो इतना टाइम क्यों बैठेगा कोई लोग इतना अभी तक, correct? So that means now you somewhere I know that तुम लोग का कहीं तो इंटरेस्ट है. अभी आप लोग इमीडिएटली खरीदे नहीं, मे बी किसी का बजट में नहीं रहेगा, किसी का पर्सनालिटी नहीं हुआ या जो भी है, तो मे बी यू विल नॉट, लेकिन आपको नर्चर करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया. तो अभी मैं आपको एजुकेशनल मैसेजेस दूंगी, जो भी है वो आपको नर्चर करेंगे, और फिर एवरीवेयर यू नीड टू पुट अ कॉल टू एक्शन कि भाई इफ यू वांट एनी मोर देन इधर आ सकते हैं कि इधर आ सकते, गिव देम अ अपॉर्चुनिटी. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. यू गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. So social media marketing, if you call back the person immediately after he clicks on your ad, and email marketing if he responds to your email. No, he will not respond, but it will be a 6 months to 1 year strategy. It's okay. It's a subscription list. You can just do it. And then every time you do your future launches or your future whatever, and it's a very smart way of doing email. It's a way to do it, but nurturing your audience, you're nurturing them. And they have come with opting. You have not just cold call emailing them. They have opted in, and always give the option, please leave if you think it's bugging you or interest. Allow them to leave.
and do it very smartly, like, you know, don't bug people. That's not what you want to do. But they have come with choice. That's a very important thing. So even if there is a WhatsApp group or a Telegram group or a LinkedIn group or whatever, they are there with their own choice. If they want, you're free to leave. So I have earned the right to sell to you. Right. Correct? Now, how well you do it, that's your chances of conversion, how it increases or reduces. But that's the sales strategy. Not doing it, अगर आपने डाला ही नहीं तो फिर कैसे आपका होगा? लेकिन ये कोल्ड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना जरूरी है, बिकॉज आपने बोला कि भाई अभी मैं खाली ईमेल मार्केटिंग ही करूंगा, तो नया नया सोशल पेड मार्केटिंग से नया नया क्रिएट करते रहो ना. उसमें से अगर 5 भी क्लोज होता है, द कन्वर्जन रेट इज लाइक 3 to 5% ओनली, बट द कॉस्ट टू रीच आउट, दिस इज सेलिंग 1 to many. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? 1 to 1 आप बेच सकते हैं, लेकिन 1 to many करके लेवरेज टाइम हो जाता है. फिर उसमें से conversion rate is only 3 to 5%. So what? It's worth it. So that's where you do your math, your customer acquisition cost. Thank you. Thank you so much. It was really helpful. In professional marketing, professional services, one keeps going on the LinkedIn and trying to build a good image. So how do you trigger call to action? How do you trigger nurturing? I mean, who to nurture? Because you have done 1 to many. You may have so many people who have seen you. You might get some likes, but how does it turn into a footfall? How does it turn into a revenue? So just Kamal, for you, I would say generally you can do, you should do some sort of paid marketing for even accountancy services, because especially for right now, there's so many people who become new entrepreneurs, and finance is one thing that nobody should ignore. हम लोग यार पैसे बचाते रहते हैं, लेकिन finance is the most powerful thing. So for you especially, go out, because you will never know enough people in your own network. You want to get out of your network and go and do this thing and offer relevant packages, you know, कि आपका कस्टमर क्या सोच रहा है और आप कैसे उसको. So there's something called as a product price mix, कि आपने प्रोडक्ट क्लाइंट ऑफर, तो उसके रेलेवेंस के आपने कैसे सब आंसर कर दिया. वो अभी सोच रहा है, आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया आपका ऑफर में कि यू नो ये फ्लेक्सिबिलिटी. सो दैट इज योर ऑफर, द मोर इररेजिस्टिबल. वो इररेजिस्टिबल ऑफर बनाना का भी एक टैलेंट है. That's extremely important. अगर वो आपने टैलेंट बना दिया, तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग करेंगे, पे कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑफर बराबर नहीं है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? सो एवरीथिंग इज दिस थिंग. सो you've got to be focused on everything. So now answering your question, that LinkedIn में किसी ने लाइक कर दिया, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट? सो you can use those emails and target them, or you can use those and you can do lookalikes and target them as much. और नहीं तो आप पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं. अभी आजकल वॉइस मैसेंजर बहुत कर रहे हैं, and you know, you can do personal messages also to them with some relevant, but don't sell. You want to understand their problem. You want to understand, you know, don't talk about your people only buy benefits and results. So they don't want to, what's in it for me? सबको खुद का ही अच्छा लगता है. Nobody likes everyone else. So आप उसको जितना बाप बनाएंगे, उसका आपको इतना फायदा रहेगा. So don't try to sell anything on LinkedIn. It's very irritating. Very true. Yeah, thanks. I think we've exhausted the questions for today. Thank you so much, Alifia. आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं, इतने वैल्यूज सबके लिए जनरेट किया है. सिर्फ सेल्स कैसे करें नहीं, तो उसके प्रोसेसेस क्या है, उसके आपने एग्जांपल्स भी बताए हैं. तो मुझे यकीन है कि सब लोग इसको डेफिनेटली अपने बिजनेस में, अपने सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करेंगे और खुद के लिए बहुत बिजनेस और बहुत वैल्यूज जनरेट करेंगे. खास करके मुझे ये अच्छा लगा कि आपने जो बोला कि हम घर में भी सेल्स ही करते हैं. हस्बैंड को अगर मनाना है, बच्चों को मनाना है, या किसी और को मनाना है, कुछ चीज चाहिए हमें, तो हम सेल्स ही कर रहे हैं. मेरे ख्याल से ये नजरिया से अगर हम देखेंगे सेल्स को, तो सेल्स बुरा नहीं लगेगा. आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको सेल्स पसंद नहीं है, बट आपका ये जो टॉक था वाज वेरी इंस्पायरिंग.
very motivating, and it's generated a lot of values for me personally. Thank you so much joining us all the way from Dubai and generating so many values for all of us. The pleasure has been mine. I've really enjoyed myself. And I think मेरा एक mind block जो था जब नेहा ने मुझे बोला था ऐसा मैं हिंदी में कैसे लेकिन I was so comfortable by the end of it. मैं I think हिंदी का इंग्लिश का कुछ भी वर्ड नहीं यूज कर रही थी, तो it was really cool. So it was like बहुत वो connect हो गई मैं अपने पास से, you know, like That's amazing. आपको मजा आया, हमको मजा आया. Thank you so much. Next जो हमारा session है लाइफ कैटलिस्ट का ऑन वैल्यू एडिशन, वो 14th सितंबर को है. दिस इज अ पेड सेशन दैट वी आर होल्डिंग, फॉर्मूला फॉर पर्सनल फाइनेंस. ये जो हमारी इन हाउस एक्सपर्ट है वंदना मूर्ति, उनका ये पेड प्रोग्राम है. और इसमें पर्सनल फाइनेंस में आपको सेविंग्स करना क्यों है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, किस चीज में इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, आपको लाइफ कैसे सिक्योर करना है. अब हम सब जानते हैं कि ये करना जरूरी है, मगर कैसे करें, कहाँ करें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें. हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग इंडिया में काफी लोग सोचते हैं कि हमने अगर इंश्योरेंस लिया है तो हमने इन्वेस्ट किया है. बट इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. ये हमको कब पता चलता है, जब अपना पॉलिसी आपको रिटर्न देता है, राइट. तो ये जो कंफ्यूजन्स है कि कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए, ये सारे आंसर्स आपको इस सेशन में मिलेंगे. और ये क्योंकि हम लोग वैल्यू एडिशन सीरीज में कर रहे हैं, तो हम लोग ये बहुत ही कम कीमत में कर रहे हैं. ओनली 499 है इसका कॉस्ट. स्क्रीन पे हमारे QR कोड है जिससे आप पे कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स भी है जिससे आप पे कर सकते हैं. तो प्लीज जिन जिन को इंटरेस्ट है इसका फोटो खींच सकते हैं आप, और आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल रही हूँ, तो अगर आप मुझसे कॉल करके बात करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है. नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनका नाम है दासु वैद्य. ये एक अमेजिंग पर्सनालिटी है लिटरेरी फील्ड से. वो राइटर है, पोएट है. उन्होंने काफी फिल्म्स पे, काफी सीरीज पे काम किया हुआ है. और इनको हम मिलेंगे 21 सितंबर को 7 बजे. तो थैंक यू सो मच सब लोगों को आज ज्वाइन करने के लिए, इतनी देर रुकने के लिए. थैंक यू सो मच अलीफिया फॉर ज्वाइनिंग ऑल द वे फ्रॉम दुबई. सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट. Do feel free to reach out at any time for anything at all. Definitely. Definitely. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much.